پر اسرار واقعات اور شیطانی قوتوں کے روبرو کسی طلسماتی وظیفے یا کسی پیر کے عصائے موجز نما کے بغیر آیات قرآنی کے ورد اور درودوں کا سہارا، سفلی طاقتوں کے خاتمے کے لیے ماتوب اور مرتد علم کا سہارا نہیں لیا۔ گمراہی اور اندیکھی قباحتوں میں گرے انسان کے لیے واحد سہارا خدا کی ذات اور اس کی یاد۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے دیوانہ ابلیس ایپیسوڈ نمبر 15۔ آج میری حالت کل سے زیادہ خراب تھی۔ میں ان چیخوں کو دل و دماغ میں ہتھوڑے برساتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد باہر نکلا۔ دل چاہتا تھا کہ کسی سے گزشتہ 2 راتوں کے ان واقعات کا تذکرہ کروں، کسی سے پوچھوں کہ کیا اسے بھی میری طرح ان چیخوں سے واسطہ پڑا ہے، مگر میں تقریباً آدھی درجن لوگوں سے ملنے کے بعد بھی یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ بات کروں یا نہ کروں، اس لیے کہ اگر کسی اور نے وہ چیخیں سنی ہوتی تو وہ مجھ سے ضرور ذکر کرتا۔ حویلی کے دائیں بائیں یا پیچھے کوئی مکان نہ تھا، مگر اس کے سامنے ریسٹ ہاؤس اور ریسٹ ہاؤس کے دائیں بائیں ذرا ہٹ کر ہی صحیح مگر 3-4 مکان تو موجود تھے، اور یہ مکان غیر آباد بھی نہیں تھے۔ ان کے مکینوں میں میرے جاننے والے لوگ رہتے تھے۔ میں ان سے بھی ملا، مگر کسی کے چہرے یا حرکات سے یہ ظاہر نہ ہوتا تھا کہ گزشتہ 2 راتوں میں کسی نے ایسی کوئی آواز سنی ہو۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ اس بات کا کھوج میں خود لگاؤں گا۔ میں اب راتوں کو مزید خوف کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ 25 سال کی عمر میں اگر میں اس دہشت کا شکار ہو کر دنیا سے چل بستا تو شاید میری روح بھی بے چین ہی رہتی کہ بغیر کسی معقول وجہ کے میں کیوں ایسی موت کا شکار ہو گیا جس کے سبب کے بارے میں کوئی کچھ نہ جانتا ہو۔ یہ فیصلہ کر کے میں حویلی کی طرف بڑھا۔ حویلی کے بڑے دروازے پر کوئی پہرے دار نہ تھا، البتہ دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازے کے دائیں بائیں دور تک چلی گئی 4 دیواروں پر نظر دوڑائی۔ دروازے کی بائیں طرف والی 4 دیواری میں خاصی دور آگے ایک اور دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ شاید کسی ملازم کے رہائشی حصے کا دروازہ تھا۔ میں اسی طرف چل پڑا۔ دروازے کے سامنے جا کر میں رکا اور سوچ میں پڑ گیا۔ شبکات کا جو سلوک بستی والوں سے تھا وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں دروازے پر دستک دیے بغیر لوٹ جاؤں، کیونکہ اس کا کوئی ملازم بھی بستی والوں سے بات کرنے پر راضی نہ ہوتا تھا۔ مگر میرے اندر کی بے چینی اور آنے والی رات کا خوف مجھے مجبور کر رہے تھے کہ میں اس دروازے پر دستک دوں، اسے کھلواؤں اور اس کے مکینوں سے پوچھوں کہ تم رات کو کیا تماشا کرتے ہو جس نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے، میری نیند چھین لی ہے اور مجھے چلتا پھرتا خوف کا اشتہار بنا دیا ہے۔ دل کڑا کر کے میں نے واپسی کا ارادہ ترک کیا اور ہچکچاتے ہوئے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے چند لمحے انتظار کیا، پھر دوبارہ دستک دی۔ اب بھی کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو تیسری بار میں نے ذرا زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ذرا دیر کے بعد اندر سے کسی کے قدموں کی آہٹ ابھری۔ کوئی دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ خشک ہوتے حلق کو تھوک نگل کر تر کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے دروازے کی جانب گھورنے لگا۔ قدموں کی آہٹ دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ چٹکنی کھلی اور دروازے کے پٹ واہ ہو گئے۔ ایک آدمی نے گردن باہر نکالی۔ کون ہے؟ اس نے تلخی بھری آواز میں یوں پوچھا جیسے میں اسے نظر نہ آ رہا ہوں۔ میں نے اس کے رویے کو بڑی مشکل سے نظر انداز کیا اور اس کا ایک طائرانہ جائزہ لیا۔ وہ 30-35 سال کا ایک عام سا آدمی تھا جس کے چہرے پر ایک شے زائد تھی۔ وہ تھی بے پناہ خشونت
اور عجیب سی شیطانیت۔ اسے دیکھتے ہی ذہن میں جو سب سے پہلا لفظ ابھرتا تھا وہ تھا خبیث۔ میں نے اپنے خوف کو اندر ہی اندر دبایا اور اس کی جانب بڑی نرم نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے پوچھا کون ہو؟ وہ اب کی بار مجھے براہ راست گھورتے ہوئے گھرایا۔ آپ میں ہلکا کا رہ گیا۔ کیا آپ کی گردان کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ وہ اسی لہجے میں بولا۔ میں یہ سامنے ریسٹ ہاؤس میں رہتا ہوں، ایک دم میرے منہ سے نکلا۔ تو پھر؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ میں نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ اس آدمی کو دیکھ کر اور اس کی غیر مہذب گفتگو سے میری جیسے سٹی گم ہو گئی تھی۔ بولتے کیوں نہیں؟ اگر تم سامنے رہتے ہو تو میں کیا کروں؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم اور کیوں؟ وہ اسی طرح گھرائے جا رہا تھا۔ کیا آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ میں نے بمشکل پوچھا۔ ارے! وہ جیسے پھٹ پڑا۔ میں اکیلا رہوں یا 10 آدمیوں کے ساتھ؟ تم کیا میرے ابا لگتے ہو جو تفتیش کر رہے ہو؟ تم ہو کون اور کیوں اس طرح مجھ سے سوال و جواب کر رہے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ دھاڑا۔ تم نے جرأت کیسے کی دستک دینے کی؟ کیا سمجھ کر تم نے مجھے بے آرام کیا، نہ جان نہ پہچان، اور چلے آئے یہ پوچھنے کہ میں یہاں اکیلا رہتا ہوں یا نہیں؟ اس نے پیچھے ہٹ کر دروازہ بند کرنا چاہا۔ سنیے، میں نے اس کا ارادہ بھانپ کر جلدی سے کہا۔ اب کیا ہے؟ وہ رک گیا۔ جو کہنا ہے اگر وہ تمہیں چین نہیں لینے دے رہا تو جلدی کہہ ڈالو، مجھے تمہاری صورت سے وحشت ہو رہی ہے۔ اس الو کے پٹھے نے ایسی بات کہہ دی جو اصل میں مجھے کہنا چاہیے تھی۔ ایک دم مجھے غصہ آ گیا۔ میں کیوں گھبرا رہا ہوں اس سے؟ کیا وہ مجھے کھا جاتا اور کھا بھی جاتا تو کیا میں آسانی سے اس کے منہ میں جا بیٹھتا؟ میرا سارا خوف اور ہچکچاہٹ کافور ہو گئی۔ میں نے اسے پہلی بار گھور کر دیکھا اور اس نے بھی میرے بدلتے ہوئے انداز کو محسوس کیا اور اس کے چہرے پر پھیلے غصے اور بیزاری میں کچھ کمی آ گئی۔ جاؤ یہاں سے، جا کر گرم گرم دودھ پیو، جب حواس درست ہو جائیں تو پھر آنا۔ ویسے میرا مشورہ تو یہ ہے کہ تم یہاں کبھی مت آنا۔ جب ہم لوگوں کا تم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے تو تم کیوں ہمارے پاس منہ اٹھائے چلے آتے ہو؟ جاؤ شاباش، جا کر سو جاؤ۔ سو کیسے جاؤں؟ میں تڑ سے بولا۔ تم لوگ سونے دو گے تو سوؤں گا نا۔ کیا مطلب؟ تمہارے سونے نہ سونے سے ہمارا کیا تعلق؟ وہ پہلی بار حیران ہوا۔ بڑے انجان بن رہے ہو، میں نے طنز سے کہا۔ ساری رات تمہارے ہاں سے چیخوں اور رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ ایسی دردناک آوازوں کی موجودگی میں کوئی کیسے سو سکتا ہے؟ چیخوں کی آوازیں، رونے کی آوازیں؟ وہ مجھے گھور کر بولا۔ تم کوئی پاگل لگتے ہو مجھے۔ میں نہیں، تم پاگل ہو جو کسی عورت کو ساری رات اذیت دیتے ہو، اسے مارتے ہو، ڈراتے ہو، رلاتے ہو۔ وہ بیچاری چیختی رہتی ہے اور چیخوں کو سن کر میں تو کیا کوئی بھی انسان سو نہیں سکتا۔ بتاؤ وہ کون ہے اور جسے تم یوں مارتے پیٹتے ہو کہ وہ اذیت سے چیختی ہے؟ بکو مت، وہ بھڑک اٹھا۔ یہاں کوئی کسی کو نہیں مارتا، نہ کوئی یہاں رات کو چیختا ہے نہ روتا ہے۔ تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ خواب؟ میں تنا کر بولا۔ 2 راتوں سے میں ایک ہی خواب دیکھ رہا ہوں۔ کیا یہ خواب صرف میں ہی کیوں دیکھتا ہوں؟ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ اس لیے کہ ایک خواب صرف ایک ہی آدمی دیکھ سکتا ہے، 2 آدمی مل کر ایک ہی خواب نہیں دیکھ سکتے۔ اگر تمہاری بات میں کوئی حقیقت ہے تو جاؤ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے کر آؤ جس نے یہ چیخیں سنی ہو۔ میں بے ساختہ ہو کر ہکلا کر رہ گیا۔ بات تو اس کی درست تھی کہ میرے علاوہ اور کسی نے یہ چیخیں سنی ہے یا نہیں۔ بس ہو گئی تسلی، اب جاؤ، اس نے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے کہا۔ خواہ مخواہ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ پریشان تو تم لوگ مجھے کر رہے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں سے رات کو رونے اور چیخنے کی آوازیں آتی ہیں، تم اب بھی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہو۔ وہ اب خلاف توقع نرمی سے بولا، جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں ایسی کوئی بات وقوع پذیر نہیں ہوئی۔ تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارے کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ وہ پھر تلخی پر اتر آیا۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ وہ عورت کون ہے جو رات کو چیختی ہے، روتی ہے؟ کوئی عورت یہاں ایسی نہیں ہے جو… تم بکواس کرتے ہو۔ میں آپے سے باہر ہو گیا۔
यहाँ पर रात कोई इसी बुरी तरह से चीखता है कि खौफ के मारे दम घुटने लगता है, जान निकलने लगती है। बुलाओ उस औरत को जो तुम्हारे जुल्म का शिकार हो रही है, मैं उसे मिले बगैर ना जाऊंगा। अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अब यहाँ से दफान हो जाओ। मैंने बार बार कहा है कि यहाँ ऐसा कोई वाक़या नहीं होता, ये तुम्हारा वहम है। कोई ख्वाब देखा है तुमने, मगर तुम अपनी ही बात पर अड़े हुए हो। मैं कोई पागल हूँ जो तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँ? मेरे कान भी दुरुस्त और मैं पूरी तरह होशमंद भी हूँ। तो तुम यूँ नहीं मानोगे, वो अजीब से लहजे में बोला। मैं जवाब में उसे घूर कर रह गया। फ़िलहाल तुम जाओ, और अगर दोबारा वैसी आवाज़ें सुनो तो उसी वक्त चले आना, तुम्हें अपने सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। उसके अलावा किसी भी वक्त तुम यहाँ आए तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। उसने तेज़ी से कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने दोबारा दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, मगर फिर रुक गया। उसकी बात पर गौर करते ही मैं ये जान गया कि उसने मेरी बात तस्लीम कर ली थी। वो मान गया था कि रात को यहाँ से चीखों की आवाज़ें बुलंद होती हैं, और उसने बिलवास्ता मुझे दावत भी दे दी थी कि मैं रात को ठीक उस वक़्त यहाँ आऊँ जब वो आवाज़ें बुलंद हो रही हों। उसके अलावा अगर मैं किसी दूसरे वक़्त यहाँ आया तो, और उसके आगे उसकी धमकी फुंकार रही थी। इसका मतलब था कि मुझे शाम ढल जाने के बाद रात के किसी पहर अंधेरे और सन्नाटे भरे माहौल यहाँ आना होगा। तभी ये पता चल सकेगा कि वो औरत कौन है, क्यों रोती है, क्यों चीखती है। मैं झटके से पलटा और लरजता कांपता अपने कमरे में लौट आया। ये लोग ज़रूर किसी मजलूम औरत पर जुल्म कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने उसे कहीं से अगवा कर लिया हो, उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हों। वो मानती ना होगी, ये उस पर सितम ढाते होंगे। सोचो कि अजीब अजीब लहरें थी जो मुझे अपने साथ बहाए लिए जा रही थी। कभी जहन किसी तरफ निकल जाता और कभी किसी तरफ। दिन बड़ी मुश्किल से कटा। मैंने दोपहर का खाना भी ना खाया। सह पहर को थोड़ा बहुत खाया और बिस्तर पर पड़ा रहा। अजीब बात थी कि मेरे दिल या जहन में खौफ की जगह उस जिद ने ले ली थी कि मैं उस राज से पर्दा हटा कर रहूँगा जो उस औरत के चीखने चिल्लाने से वाबस्ता था। सोचते सोचते मैं न जाने कब सो गया। चूँकि रात भर का जागा हुआ था और दिमाग पर उस ताज़ा मुलाकात का बोझ था, इसलिए सोया तो ऐसा बेसुध कि जब जागा तो रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। मैंने जल्दी से उठकर लालटेन जलाई। माहौल पर बड़ी पुरइसरार सी खामोशी तारी थी। भूख कतन महसूस ना हो रही थी। अब मुझे इंतज़ार करना था उस लम्हे का जब वही खौफनाक चीख बुलंद होती और मैं उस घर तक जा पहुंचता जहां वो मजलूम औरत और उस खबीस के सितम का शिकार हो रही थी। मैंने कंबल अच्छी तरह ओढ़ लिया और बिस्तर पर नींद दराज हो गया। इंतज़ार करते करते मुझे अगर नींद आ भी जाती तो मैं जानता था कि वो चीख इस कदर तेज़ और दहशतनाक होगी जो मुझे जगा देगी। इसलिए मैंने दिमाग पर कोई बोझ ना डाला, ना ही खुद को ज़बरदस्ती जागने पर आमादा किया। बस आंखें बंद किए खामोश पड़ा रहा। फिर वो लम्हा आ गया जब मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। वो चीख ही थी जिसने मुझे लर्जा कर रख दिया था। मैंने एक पल को इधर उधर नज़र दौड़ाई, फिर कंबल एक तरफ सिरकाया, एक गर्म स्वेटर से जिस्म को ढांपा और कमरे से निकल आया। आज उस चीख के बाइस पैदा होने वाले खौफ का दुरानिया बेहद कम था। मैं कमरे से निकला तो दहशत ज़दा नहीं था। बाहर 400 सन्नाटा तारी था। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंका तो सन्नाटे ने एहतजाजन चंद लम्हों के लिए हाथ पांव मारे, फिर वही खामोशी छा गई। मैं तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ उसी दरवाजे पर आकर रुका जहां सुबह मेरी उस खबीस के साथ मुंह मारी हुई थी। मैं जूं ही दरवाजे पर आकर ठहरा, अंदर से फिर एक चीख उभरी, मगर मैं दिल कड़ा करके खड़ा रहा। उसी वक़्त एक ख्याल मेरे दिल में ये भी आया कि ऐसा ना हो कि मैं अंदर जाकर किसी मुसीबत में फंस जाऊं। ना जाने अंदर क्या सूरत हाल हो। मैं कुछ भी ना जानता था। फिर मेरा तजस्सुस मेरे अंदेशों पर गालिब आ गया। मेरा दिल खासी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था।
मैंने उस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए दरवाज़ा खटखटा दिया। यूं लगा कि जैसे अंदर कोई मेरा ही मुंतज़िर था, क्योंकि एक ही लम्हे के बाद खट से दरवाज़ा खुल गया। वो खबीस मेरे सामने खड़ा था। अंदर हल्की हल्की जर्द रोशनी हो रही थी, जिसका हल्का सा अक्स उस पर पड़ रहा था। वो किसी बदरू की तरह मेरे सामने मौजूद था। तो तुम आ गए, वो उसी गुराते हुए लहजे में बोला। बड़ी ज़बरदस्त परेशानी हो गई है तुम्हें? हाँ, मैंने अचानक उभर आने वाले गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो औरत कौन है, चीख रही है, क्यों रोती है वो? बस यही मेरी परेशानी है। कोई चीखता है तो उसे चीखने दो, रोता है तो रोने दो, तुम्हारा क्या लेता है? बको मत, बेसाख्ता मेरी लबों से निकला। एक लम्हे को मैं खुद हैरान हो गया कि ऐसे अल्फाज मेरे मुंह से क्यों कर निकले। फिर मैंने उस पर मज़ीद गौर करना फजूल समझा और कहा, तुम मुझे बताते हो या मैं खुद अंदर आकर जान लूं कि असल किस्सा क्या है? आओ, उसने एक तरफ हटते हुए कहा। उसके लहजे में बेजारी और मजबूरी साफ झलक रही थी। मैं अंदर दाखिल हुआ। ये एक सेहन नुमा जगह थी। उसने पीछे दरवाज़ा बंद किया और सेहन में आगे बढ़ा। रुक क्यों गए? आओ। वो मुझे इशारा करते हुए सामने एक कोठरी के करीब जा खड़ा हुआ, जिसका दरवाज़ा आध खुला था। मैं उसके करीब जा खड़ा हुआ। चलो। उसने मुझे कोठरी के अंदर दाखिल होने का इशारा किया। सूरत हाल ऐसी थी कि मैं उसे पहले तुम नहीं कह सकता था। एक नज़र उसके चेहरे पर डालकर मैंने कोठरी में कदम रख दिया। जो ही मैं अंदर दाखिल हुआ, उसने फटाक से कोठरी का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मैं चौंक कर पलटा, मगर देर हो चुकी थी। दरवाज़ा बाहर से बंद करने के बाद वो ज़ोर से हंसा और फिर उसके दूर जाते कदमों की आहट उभरी। मैंने ज़ोर से कोठरी का दरवाज़ा धड़धड़ाया, मगर बेसूद। तंग आकर मैंने कोठरी का जायज़ा लिया। कोठरी के फर्श पर प्याल बिछी थी। छत बोसीदा थी, जिसमें जगह जगह जाले लगे हुए थे। सामने एक खिड़की थी और एक कोने में ताक पर रखा तेल का दिया जल रहा था। मैं अचानक ही थकान का शिकार हो गया। ये सारी मुसीबत मेरी अपनी पैदा की हुई थी। अब मेरे साथ क्या सलूक होना था, मैं उससे बिल्कुल अनजान था। वो खबीस मुझे कत्ल कर देता या किसी इल्ज़ाम में फंसा कर उससे कम बुरा सलूक करता। मैं हर तरह से बेबस था। जगह उसकी थी, मैं बाहर से आया था और ये भी ना कह सकता था कि यहाँ मुझे ज़बरदस्ती लाया गया है। मेरा दिल अब ज़ोर ज़ोर से तो ना धड़क रहा था, मगर इसमें अंदेशे ज़रूर जन्म ले रहे थे। अपना तजस्सुस दूर करने के लिए मैंने अंधे कुएं में छलांग लगा दी थी। कोठरी में जलता हुआ दिया वहाँ की नामानूस फ़िज़ा को मुनव्वर करने की अपनी सी कोशिश कर रहा था। एक अंदाजे के मुताबिक ये कोठरी 8 हाथ लंबी और 6 हाथ चौड़ी थी। उसकी हालत से लगता था कि उसे बहुत कम इस्तेमाल किया गया है। मैंने एक बार फिर कोशिश की। दरवाजे को पूरी ताकत से पीट डाला, मगर ना बाहर से कोई जवाब उभरा, ना मैं उसे यकीन से खुद को बहला सका कि यह दरवाज़ा तोड़ सकूंगा। एक तवील सांस लेकर मैं आगे बढ़ा और दीवार से टेक लगाकर प्याल पर बैठ गया। आने वाले वक्त के दामन में मेरे लिए क्या छुपा हुआ था, उसे जानने के लिए मुझे फिर इंतज़ार की सूली पर लटक जाना पड़ा। मैंने टांगें पिसार लीं और नज़रें सामने बंद दरवाजे पर जमा दी। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि उस अजनबी माहौल को एक मर्तबा फिर उन्हीं खौफनाक चीखों ने थरा कर रख दिया। मैं उछल पड़ा। खौफ के अचानक हमले ने मुझे बेहाल कर दिया था। फ़ौरन ही मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि कोठरी के बाएं दीवार की तरफ से यह आवाज़ आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर कान उसके साथ लगा दिए, मगर सवाए उन चीखों और रोने की नस्वानी आवाज़ों के उधर से कोई और सदा ना उभर रही थी। मैंने एक बार फिर दरवाजे पर ज़ोर आजमाई की, उसे आगे पीछे खींचा और जूं ही मैंने उसे बाहर की तरफ धकेला, वो खुल गया। मैं ये सोचे बगैर कि अब कैसे और क्यों कर खुल गया, बाहर निकल आया।
और एक नज़र इधर उधर दौड़ाई और साथ वाली कोठरी की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। मैंने आहिस्ता से दरवाजे को खोला। दरवाज़ा बे आवाज़ खुलता चला गया। सामने फर्श पर वही खबीस आदमी आलती पालती मारे बैठा था और उसके सामने साड़ी में मलबूस एक गोरी चिट्टी लड़की घुटनों में सर दिए बैठी रो रही थी। उसकी हिचकियां मुसलसल थीं और कभी कभी वो चीख भी उठती। मैंने हैरत से ये मंजर देखा। वो खबीस आंखें बंद किए बैठा था। लड़की को हाथ ना लगा रहा था, ना मार रहा था, ना अजियत दे रहा था, और उसके बावजूद वो रह रह कर यूं चीख पड़ती जैसे कोई उस पर नश्तर चला रहा हो। एक बार चीख कर जो उसने चेहरा ऊपर उठाया तो जहां में उसका मलकूती हुस्न देखकर हैरत ज़दा रह गया। वही मुझे देखकर उस लड़की की चीख अधूरी रह गई। उसने मुझे देखा और आध खुले मुंह से निकलती हुई चीख ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। साथ ही उसके अजियत से जर्द होते चेहरे पर हैरत ने जन्म लिया। हम दोनों एक दूसरे को हैरान हैरान नज़रों से देख रहे थे। मैं तो उसकी हालत पर हैरान था और वो शायद एक अजनबी को वहाँ खड़े देखकर। उस कबीस ने अचानक वहाँ मेरी मौजूदगी को महसूस कर लिया और उसने पटाख से आंखें खोली। पहले सामने बैठी लड़की को घूरा, फिर उसकी नज़रों के ताक़ब में मुझ तक आया और मुझे वहाँ खड़ा देखकर बड़े अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। मैंने उसके बाखबर होते ही अपनी जगह से हरकत की, तेज़ी से आगे बढ़ा और उस लड़की के करीब जा पहुँचा। वो इतनी हसीन और नाजुक थी कि मैं उसके सहर में डूबा जा रहा था। मुझे आगे बढ़ते देखकर भी वो खबीस अपनी जगह से हिला ना, उसने मुझे रोका। शायद ये सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। मैं उससे हटकर लड़की के पहलू में जाकर रुका, फिर उसके पास ही फर्श पर पैरों के बल बैठ गया। कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? मैंने किसी खौफ के बगैर बराह रास्त उसे मुखातब करते हुए कहा। वो जवाब में खामोश और खौफज़दा नज़रों से कभी मुझे और कभी उस खबीस को देखती रही। आंसू उसके सुर्ख और सफ़ेद रुखसारों पर बह बह कर लकीरें बना चुके थे। ना जाने वो दिन रात में किसी वक़्त आंसू बहाने से फरागत भी पाती थी या नहीं। तुम बोलती क्यों नहीं? मैंने उसे फिर मुखातब किया। इस दौरान मैंने एक नज़र उस खबीस पर भी डाली जो मुझे बड़ी दिलचस्प नज़रों से देख रहा था, जैसे ये सब एक खेल हो और वो तमाशाई। ये आदमी, उसने खौफ से हकला कर उस खबीस की तरफ इशारा किया, ये मुझे, और वो फिर खामोश हो गई। ये तुम्हारा क्या लगता है? मैंने सवाल का अंदाज बदला। मालूम नहीं, वो सर नफ़ी में हिलाकर बोली। क्या मतलब? तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारा इस आदमी से क्या ताल्लुक़ है? मैंने हैरत से पूछा। नहीं। उसे अब कुछ ढारस हुई। मैं अपने और इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, अपने बारे में भी कुछ नहीं जानती। मेरी हैरत दो चंद हो गई। नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ, ये कौन है, मैं यहाँ कैसे आई और क्यों आई। अच्छा ये बताओ कि तुम चीखती और रोती क्यों हो? मैंने देखा है कि ये आदमी तुम्हें ना मारता है ना तकलीफ़ पहुँचाता है, फिर भी तुम रह रह कर चीख पड़ती हो। ये मुझे जिस्मानी अजियत नहीं देता, ज़हनी अजियत देता है। वो जैसे फट पड़ी। रोज़ाना रात को ये मुझे उसी तरह सामने बिठा लेता है और मुझसे कहता है कि मेरे साथ शादी कर लो। मगर ये तुम्हें ज़हनी अजियत कैसे देता है? मैं अब भी हैरान था। ये पहले तो अपनी खौफनाक आंखों से मेरी तरफ घूरता रहता है, फिर ना जाने क्या पुरइसरार से अल्फाज दोहराता है और आंखें बंद कर लेता है। इसकी आंखें बंद करते ही मुझे हर तरफ बदरूहें, चुड़ैलें और अजीब अजीब खौफनाक शक्लें दिखाई देने लगती हैं, जो मुझे इसके साथ शादी करने पर मजबूर करती हैं, डराती हैं, धमकाती हैं। कभी वो दांत कचकचाकर मुझ पर टूट पड़ने को बढ़ती हैं। उसकी मनहूस और खौफनाक शक्लों और हरकतों से खौफज़दा होकर मैं चीखती हूँ, रोती हूँ, इसकी मिन्नतें करती हूँ, मगर ये मुझे माफ़ नहीं करता। आंखें बंद भी कर लूँ तो वो बदरूहें मेरा पीछा नहीं छोड़ती, दिखाई देती रहती हैं। अगर ये बात है तो तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेती? आखिर तुम्हें किसी से तो शादी करना ही पड़ेगी, तो फिर इसी से क्यों नहीं? मैं जीरा करने पर उतर आया।
खौफ और दहशत मुझसे यूं बिछड़ गए थे जैसे मैं किसी पंचायत का रुकन हूं और कोई मुकदमा सुनता रहा हूं। इससे वो खौफजदा होते हुए भी अपनी नफरत ना छुपा सकी। ये इंसान हो तो मैं तूहन कराहन हाँ भी कर दूं। ये तो शैतान है, इबलीस का चेला। क्या? मैं उछलता पड़ा। ठीक कह रही है ये। उसी वक्त वो खबीस बोल पड़ा। उसकी मकरू आवाज़ सुनकर मैंने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा। मैं इबलीस का पुजारी हूँ। इससे शादी करना भी मेरी पूजा का एक हिस्सा है। इबलीस के अनगिनत पुजारियों के सामने मुझे इसके साथ अपनी सुहागरात मनाना है। ये है वो बात जिसने मुझे इससे नफरत करने पर आमादा किया। मैं कैसे इस बेशर्मी पर आमादा हो जाऊं? ये कहकर उसने मुंह फेर लिया। शर्म और शर्मिंदगी ने उसके खूबसूरत चेहरे को गुस्से से तमतमा दिया था और वो और भी हसीन लगने लगी थी। तो तुम इबलीस के पुजारी हो? मैंने गौर से उसे देखा। तुम्हारी शिकायत तो शबकात से करनी चाहिए। जवाब में उस मनहूस के हलक से एक तवील और मकरूह कहका बुलंद हुआ। कितनी ही देर वो हंसता रहा, फिर मेरी तरफ तंजिया निगाहों से देखने लगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? शबकात खुद क्या है? तुम्हारा मतलब है वो भी? मैंने जल्दी से कहा। हाँ, वो भी इबलीस का पुजारी है, शैतान का चेला है। वो बड़े पुरइसरार अंदाज में मुस्कुराया। ये हवेली शैतान का मस्कन है। अब बोलो क्या कहते हो?